Question number 6, exercise 9.4. Here we have to find the sum of n term. Find the sum of n term with the series. Given series is 3 into 8, 3 into 8 plus 6 into 11 plus 9 into 14. Then plus, let's say n term. We have to find the sum of n term of this given series. So first we have to find the nth term of series. तो यहाँ पर आप डायरेक्टली प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो ना. फर्स्ट टर्म के लिए तो शायद कर पाएंगे, लेकिन लेकिन ये जो दूसरी टर्म है ना उसके लिए प्रिडिक्शन नहीं कर सकते. तो यहाँ पर n टर्म फाइंड करना हो तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि फॉर दिस गिवन स्पेशल सीरीज nth term will be क्या है nth टर्म. फर्स्ट टर्म कोई दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, सेकंड टर्म भी कोई दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, थर्ड नंबर भी कोई दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है. तो nth टर्म भी किसी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा. इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म. यस, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ विच टू टर्म्स. सो प्रोडक्ट ऑफ वी कैन से दिस 3 6 9 है ना. 3 6 9 आप एक सीरीज कंसिडर करो तो उसके अंदर कॉमन डिफरेंस कॉमन है. तो इट्स nth term of series 3 6 9 up to infinite. It's a product of two term in which first term is nth term of this series 3 6 9 up to infinite, and second term is the nth term of series 8 11 14. ये सीरीज भी आप चेक कर लो, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है. तो दोनों सीरीज का nth टर्म का मल्टीप्लिकेशन हमारी जो गिवन स्पेशल सीरीज है ना उसका nth टर्म होगा. इज दैट क्लियर? So here, what is the nth term? Formula is a plus n minus 1 into d, where a is 3, n minus 1 into d is common difference, which is 3. Then into nth term, a plus n minus 1 into d, where a is first term is 8, into n minus 1 into d is common difference. Here common difference is 11 minus 8, 3, है ना. 14 minus 11, 3. So it's a product of these two terms. It will be our nth term. So nth term is nothing but the an, and this is equal to, simplify this, 3 plus 3n minus 3. This one 8 plus 3n minus 3 plus 3 minus 3 cut 3n. डायरेक्टली भी आप बोल सकते हो यहाँ पर, है ना. देखो 3 6 9, फर्स्ट टर्म इज 3 into 1, second term is 3 into 2, third term is 3 into 3. So nth term is 3 into n. So this is nth term for the first series. Into this one 8 minus 3, 5 plus 3n, 5 plus 3n. मल्टीप्लीकेशन करके लिख दो, एक्सपांशन करके. So it will be 5 3 is 15n, 15n plus 3 3 is 9n square. This is the value of our nth term for this given special series. Clear students? ये समझ में आ गया? Now we have to find the sum of n term. So now sum of n term है ना, वो हमें फाइंड करना है ना. Find the sum of n term. So now sum of n term will be Sn. That is equal to sigma k equal to 1 to n तक, because sum of n term चाहिए. Sum of n term of k. Here our an is 15n plus 9n square. So ak will be sigma k equal to 1 to n. This will be 15k plus 9k square. 15k plus 9k square. Done. So we are getting our formula. So this will be 15 constant. So it's a 15 sigma k equal to 1 to n k, sum of first n natural number है ना k, plus 9 constant sigma k equal to 1 to n
के स्क्वेयर दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। दोनों का फॉर्मूला हम सबको आता है। सो अप्लाइंग फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू 15 sigma k. Sigma k is n plus 1 by 2. Let's say n plus 1 by 2 plus 9 sigma k square. Sigma k square n plus 1 to n plus 1 by 2 then by 6 है ना, by 6 होता है। So 9 into this one is n plus 1 to n plus 1 by 6 डन। बस अभी इसका सिंप्लीफिकेशन सेशन करते हैं पहले से। यहाँ पे कटिंग करो तो 3 2 जा एंड 3 3 जा 9 डन। तो ये 2 2 एंड n प्लस 1 कॉमन है। सो टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 भी कॉमन ले सकते हो ना, 3 कॉमन है, 2 भी कॉमन है। सो टेकिंग कॉमन एज ए 3 n प्लस 1 बाई 2 इतना कॉमन आ गया। देखो n प्लस 1 2 एंड 3 कॉमन है, तो यहाँ पर बाकी क्या बचेगा? 5 बचेगा सिर्फ। यहाँ से 3 आ गया, 2 आ गया, n आ गया, n प्लस 1 आ गया, तो ये बचेगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 3n n प्लस 1 बाई 2, यहाँ पर 2n प्लस 6, 2n प्लस 6। 2 कॉमन आएगा, 2 2 कट हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 3n n प्लस 1। हियर n प्लस 3, 2 कॉमन आ गया, 2 2 से 2 कट हो गया। सो दिस इज सम ऑफ n टर्म, sum of n term for this given special series. Is that clear, students? Next question, question number 7. Seven sum. Question is, find the sum of n terms, but given series is 1 square plus 1 square plus 2 square plus 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to n terms. We have to find the sum of n term of this given series. Then देखो इसके अंदर nth टर्म फाइंड करना है, तो n टर्म के लिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो तो आपको डायरेक्ट n टर्म मिल सकती है ना। फर्स्ट टर्म a1 होती है, सो व्हाट इज a1? इट्स अ 1 स्क्वायर। सेकंड टर्म a2, सो व्हाट इज a2? इट्स अ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर अप टू 2। डन। व्हाट इज a3? a3 इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। इट्स अ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, it's a3. So it is an. So here we can say an. An is nothing but the sum of square of first n natural numbers. Yes or no? Or an it will be sum of square of first n natural number. It's a sum of square of first n natural numbers. Sum of square of first n natural numbers. Sum of square of first n natural number को हम कैसे लिखेंगे? So 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हमें पता है ना। किसको पता है बोलो? व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर? एनीवन? नो वन, है ना। जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, n प्लस 1 2n प्लस 1 by 6, this is the sum of square of first n natural number. Done. This is our nth term. This is our nth term. लेकिन nth term को हम एक्सपांशन करके सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। सो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये समझ में आया ना कहाँ से आया? ये फॉर्मूला था सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n k स्क्वेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट्स अ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। याद नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखो। तो इट्स अ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला था n प्लस 1 टू n प्लस 1
बाई 6। डन। और इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो क्या होगा, इट विल बी n इंटू इसका एक्सपांशन 2n प्लस n प्लस 2n, सो इट्स अ 3n प्लस 1 बाई 6। और ये n अंदर मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर आएगा 1/6, है ना, 1/6 n अंदर जाएगा तो इट्स अ 2n प्लस 3n प्लस n। Done. This is our nth term of this given series. Is that clear, students? Our an will be 1/6 2n³ प्लस 3n² प्लस n। क्यूब वाला फॉर्मूला आएगा, स्क्वायर वाला फॉर्मूला आएगा और ये n वाला फॉर्मूला आएगा। उसमें से जो भी कॉमन आएगा वो कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई करना है ना, तो पहले से ही कर रहे हैं हम। सो नाउ सम ऑफ n टर्म that is Sn, that is equal to sigma k equal to 1 to n sum of n term of a k. So this is equal to 1/6 कांस्टेंट बाहर ले लिया, सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n, ये होगा 2k³ प्लस 3k² प्लस k। फॉर्मूला अप्लाई करो, ये जो सिग्मा है उसको हर एक टर्म के साथ लिखो। सो फर्स्ट ना, ये 1/6 सबके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो आपको याद ध्यान में रखना है 1/6 को, है ना, पहले से बाहर ही रखो, सिंप्लीफाई करके लास्ट में उसको डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना है वो करेंगे। सो 1/6 बार, यहाँ पर सिग्मा अंदर जाएगा तो ये 2 सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n k³ प्लस 3 सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n k² प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n k। डन। All three formulas. Sum of cube of first n natural numbers. This is equal to 1/6। यहाँ पर 2 इंटू k क्यूब क्या होगा, इट्स n प्लस 1/2 होल स्क्वायर, है ना, प्लस 3 इंटू k स्क्वायर ये वाला k प्लस 1 2k प्लस 1, तो ये n प्लस 1 2n प्लस 1/6 प्लस सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यही आता है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, तो इट्स n प्लस 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी इसमें से आप देखो तो कॉमन आएगा, है ना, ये स्क्वायर को मैं अंदर अप्लाई कर दूँ तो ये n² n प्लस 1 स्क्वायर और ये 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल और यहाँ से एक 2 कट, यहाँ पर 2 बचेगा, ये 3 2 + 6 2 बचेगा। तो यहाँ पर देखो हर एक टर्म में 2 कॉमन है, n कॉमन है, n प्लस 1 कॉमन है, तो इतना मैं कॉमन ले सकता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू 1/6 पहले से ही बाहर है, उसको टीम में जगह नहीं मिली है, तो इट्स n प्लस 1/2 कॉमन, n प्लस 1/2 कॉमन, है ना, ये स्क्वायर था तो ये n प्लस 1 बचेगा, दैट मीन्स n² प्लस n बचेगा। यस, n² प्लस n, और यहाँ से n प्लस 1 2 चला गया तो बाकी क्या बचेगा 2n प्लस 1 और यहाँ से सब कुछ चला गया तो यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1। डन। सो दिस विल बी 1/6 n प्लस 1/2 और इसका क्या होगा n² प्लस 3n प्लस 2, n² प्लस 3n प्लस 2, है ना, इसका भी आगे फैक्टराइजेशन हो सकता है। n² प्लस 3n प्लस 2 का क्या होगा, 2 के फैक्टर फाइंड करो जिसका एडिशन 3 हो, सो 2 1 जा 2, तो ये होगा n प्लस 2 n प्लस 1, है ना, n प्लस 2 n प्लस 1 होगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/6 n प्लस 1/2 और ये होगा n प्लस 1 n प्लस 2 और n प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा और ये 6 और 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया तो ये हो गया 1/12, है ना, 6 2 जा 12, 1/12 n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 स्क्वायर
और ये हो गया n+2. So this is the sum of n term for this given special series. Is that clear, students? ये समझ में आ गया सबको? हेलो, ये क्या बोलेगा? यस सर, यस सर. बाकी सब तो ऐसे ही टाइम पास करने आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज. देखो यहाँ पर अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसके अंदर हमें सीरीज दी थी, उसके अंदर हम nth टर्म फाइंड कर रहे थे. लेकिन यहाँ पर अभी हमारे लिए जो काम है वो इजी हो गया. यहाँ पर nth टर्म ऑलरेडी गिवन है ना. तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 8 to 10. बाकी के 3 क्वेश्चन इन विच nth टर्म इज गिवन. तो ये तो बिल्कुल ही आसान काम हो गया हमारा. nth टर्म फॉर 8 क्वेश्चन और गिवन nth टर्म इज n+1 n+4. डन है ना. इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम ये फाइंड कर रहे थे और किसी भी कहीं कहीं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे फाइंड करें. यहाँ पर तो दे दिया, बस इसका सिंप्लीफिकेशन करो और फॉर्मूला अप्लाई करो. सो n को ऐसे रखो, पहले एक्सपांशन करो n+1 n+4 का. तो इट्स n² + 5n + 4, n² + 5n + 4. उसके बाद n को अंदर मल्टीप्लाई करो. सो nth टर्म विल बी n³ + 5n² + 4n. डन. दिस इज अवर nth टर्म. अभी इसका हमें सम फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म. सो सम ऑफ n टर्म विल बी Sn. This is equal to sigma k equal to 1 to n an. So this is equal to sigma k equal to 1 to n. This will be k cube plus 5 into sigma k equal to 1 to n k square plus 4 into sigma k equal to 1 to n k. है ना. k क्यूब k स्क्वेयर एन के. अगेन वो तीनों फॉर्मूला जो हम बारी बारी से यूज कर रहे हैं वही फिर से आएंगे. डन. सिंप्लीफिकेशन करें. दिस इज इक्वल टू k क्यूब इज n+1 2 स्क्वेयर. तो इट स्क्वायर के साथ ही लिखते हैं. तो इट्स n² n+1 स्क्वेयर बाई 4 प्लस 5 इंटू के स्क्वेयर. तो वो होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 प्लस 4 इंटू के सिग्मा के n+1 n+1 बाई 2. हो गया. क्या कॉमन आएगा? सो हियर यू कैन टेक कॉमन लेना हो तो है ना. ये 2 6 4 में से 2 कॉमन लेंगे ना तो कितनों को समझ में नहीं आएगा कि 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा. तो ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे ही छोड़ दो. अगर समझ में आ रहा है तो 1/2 कॉमन ले लो. यहाँ से ऊपर से n कॉमन आएगा और ये n+1 कॉमन में आएगा. डन. सो n+1/2 इज कॉमन. तो रिमेनिंग टर्म्स आर इट्स n+1 स्क्वायर था n डिवाइड बाई 2 प्लस 5 n+1 कॉमन 2n+1 here it's a 3. अगेन 1/2 कॉमन ले लिया, n ले लिया तो यहाँ पर 4 बचेगा. डन. सो 1/2 1/3 एंड अपॉन 1. इसका एलसीएम लेना पड़ेगा तो ऊपर एडिशन होगा. डन. सो दिस इज इक्वल टू n+1 बाई 2. सो 2 3 एंड 1 एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 1 6 होगा. सो 2 3 जा 6. इट्स a 3n n+1. So this is your question number 8. Now read the question number 9. So for question number 9, nth term is given. So here given nth term is ना. आप इसको इम्पोर्टेंट टिक करके रखो. क्वेश्चन नंबर 9
So given nth term is n square plus 2 raised to n. And n square plus 2 raised to n is the given nth term. For this nth term, we have to find the sum of first n term. So sum of first n term will be Sn, and that is equal to sigma k equal to 1 to n ak. So this can be written as sigma k equal to 1 to n, replace n with k. So it's a k square plus 2 raised to k. It's a k square plus 2 raised to k. Done. Now अभी यहाँ पर आप सेपरेट कर देंगे सपोज, है ना, सिग्मा जैसे हम नॉर्मली कर रहे हैं ऐसे, सिग्मा के स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 रेस टू के। तो सिग्मा 2 रेस टू के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, है ना। पुट के इक्वल टू 1 हियर, so if we are taking k equal to 1, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, और फर्स्ट टर्म विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 रेस टू 1। देखो, है ना, बारी बारी से जो सिग्मा का ऑपरेशन है वही कर रहे हैं हम। k इक्वल टू 1 प्लस उसके बाद सिग्मा k इक्वल टू 2 लेगा, सो इट्स अ 2 स्क्वायर प्लस 2 रेस टू 2 प्लस पुट k इक्वल टू 3, तो क्या होगा, इट्स अ 3 स्क्वायर प्लस 2 रेस टू 3 प्लस 4 लेंगे तो क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस 2 रेस टू 4, ऐसे nth तक जाएगा। डन। अभी ये दोनों जो टर्म है उसको सेपरेट करो। देखो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये सब टर्म्स का देखो एडिशन ही है, 1 स्क्वायर प्लस 2 रेस टू 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 रेस टू 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 रेस टू 3 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 रेस टू 4। तो ये दो टर्म को हम सेपरेट करें ना, तो फर्स्ट टर्म में मैं लिख रहा हूँ ये फर्स्ट वाली टर्म, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, प्लस सेकंड में मैं साथ में लिख रहा हूँ ये 2 रेस टू 1 प्लस 2 रेस टू 2 प्लस 2 रेस टू 3 प्लस 2 रेस टू 4 अप टू n टर्म। कोई बताएगा मुझे मैंने ऐसा क्यों किया? ये करने के बाद शायद किसी को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। कोई जिसको ये समझ में आ गया कि मैंने क्या किया? नहीं। हाँ, मैंने दो सीरीज को सेपरेट कर दिया। दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। और इसको आप अच्छी तरह से देखो, सो दिस इज नथिंग बट वन जीपी, है ना, इन विच फर्स्ट टर्म ए इज 3, कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू 2। डन। तो यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हमें पता है ना, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इट्स n plus 1, 2n plus 1 by 6 plus this is GP in which common ratio is greater than 1. So what is the formula to find the sum of n natural numbers? It's a Sn equal to a r raised to n minus 1 upon r minus 1. So what is a? First term. First term is 3. So it's a 3 into r common ratio 2. So it's a 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1. Done? 2 minus 1 is 1. So this is our answer. लास्ट में आपको फाइनल आंसर लिखना है तो आप ऐसे लिखो, इट्स n by 6 n plus 1 2n plus 1 plus 3 into 2 raised to n minus 1. This is the sum of n terms of this given series, in which nth term is n square plus 2 raised to n. Is that clear? स्टूडेंट्स, इसको आप इम्पोर्टेंट टिक मार्क करके रखेंगे, है ना, बिकॉज इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल सीरीज, है ना, दिस इज आवर स्पेशल सीरीज एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अंडरस्टूड? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10th sum. So here an is the nth term and Sn will be the sum of n term, because we are given nth term of the series. Nth term is given as 2n minus 1 raised to 2. इसके लिए हमें Sn फाइंड करना है. So nth term is given.
सो एक्सपांशन करके लिखे, सो और nth टर्म विल बी 2n-1 होल स्क्वायर का एक्सपांशन फर्स्ट टर्म स्क्वायर 4n square minus 2 into first into second term 4n minus 4n plus 1 square 1. Done. This is our nth term. You have to find the sum of n term. So it will be Sn, sum of n terms. Sn will be sigma k equal to 1 to n ak. It is equal to sigma k equal to 1 to n. Replace n with k. It's a 4k square minus 4k plus 1. Done. So this will be equal to 4 into sigma k equal to 1 to n k square plus नहीं minus 4 sigma k equal to 1 to n k plus sigma k equal to 1 to n 1. बस मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं ना एग्जाम में ये यही टर्म पर करते हैं. मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है. कोई बताएगा मुझे क्या होता है? सिग्मा के इक्वल टू 1 टू n 1 क्या होगा? देख लो जब तक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सिग्मा के स्क्वेयर इट्स अ 4 इंटू के स्क्वेयर का फॉर्मूला एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 4 एन एन प्लस 1 बाई 2 प्लस बोलो क्या होगा ये? सिग्मा के इक्वल टू 1 टू n 1 क्या होगा? n होगा, याद रखना. सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा? कॉमन ले लो. यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 2 6 में से नहीं लेना है. चलो n n प्लस 1 वो भी नहीं होगा, सिर्फ n ही कॉमन आएगा. सो n इज कॉमन है ना. n यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है. बाकी बचा यहाँ पर कटिंग कर दो. 2 2 जा 2 3 जा तो इट्स 2/3. सो 2n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 3 माइनस 2 2 जा 4 n तो कॉमन चला गया तो रहेगा 2n प्लस 1 और यहाँ से n चला गया तो 1. डन. क्या होगा सिंप्लीफिकेशन? दिस विल बी इक्वल टू n. ऊपर करो एक्सपांशन तो इट्स 2n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n. सो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 2 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 by 3 minus this will be 2n minus 2 प्लस 1 है ना. और आगे सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा. लास्ट तक सिंप्लीफिकेशन करो तो क्या होगा? दिस इज इक्वल टू n, ये 2 है सो इट्स 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2. ये 3 है, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस 2n माइनस 1 होगा है ना. तो माइनस 2n माइनस 1 को ये 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 6n माइनस 3 होगा. माइनस 6 माइनस 6 प्लस 3 इट्स माइनस 6n माइनस 3 माइनस 6n माइनस 3 होगा. माइनस 3 होल डिवाइड बाई 3. अभी और सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा. इट्स 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 6n. सो 4n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3. सो 4n स्क्वायर माइनस 1 4n स्क्वायर माइनस 1 बाई 3. अभी और सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा. 4n स्क्वायर माइनस 1 है ना. इट्स अ डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर. सो इट्स 2n माइनस 1 2n plus 1 divided by 3. Done. This is our answer. So writing our final answer, sum of n term Sn is n by 3 2n minus 1 2n plus 1. Done.